Welcome to Pharma Digital, and here in this video I am gonna discuss about the another disease which is caused by the mycobacterium species, and that is the leprosy. And leprosy is a disease which is caused by the microorganism mycobacterium lepra, and in case of tuberculosis, that is caused by the mycobacterium tuberculosis. And here there are some signs and symptoms that occurs during the infection of the leprosy. That is a lesion means wound with pus forming tumors, lesion of the skin, and peripheral nerve means the nerve which are associated with other than central nervous system, that is we known as peripheral nerve. Means the nerve of hand, the nerve of legs, and different means the nerve which are associated with other than central nervous system, and here in this peripheral nerve are infected. And in this disease there are some signs and symptoms occurs. That is here the shape of the fingers are damaged, then the numbness occurs around the fingertip, means there is no sensation generations, and some lump or skinny growth are present, and also leads to muscles weakness. And this leprosy is determined, or this leprosy is divided into four common categories. One is lepromatous, that is also abbreviated as LL. Second one is tuberculoid, and third one is indeterminate, that is also abbreviated as IL, and fourth one is dimorphic, that is also called as borderline or BL leprosy. And this leprosy is determined by a parameter that is known as CMI. CMI stands for cell mediated immunity, and in lepromatous leprosy the CMI is low, and here the disease progressing capability is rapid. And in TL CMI is higher than the LL, and here the disease progress is slow as compared to LL. So here as you know, this leprosy is divided into four categories: LL, TL, IL, and BL. And this leprosy progress capability is determined by these parameters CMI, that is also known as cell mediated immunity. And in single word or in simple line, if we consider this CMI it is a parameter which able to determine the progressive nature of the disease. If the CMI is low, the disease is progress rapidly, and if the CMI is higher, the disease progress is slow. Means this CMI is indirectly proportional to progressing of the disease. If CMI is low, progressive disease is higher, and if CMI is higher, the disease progress is slow. Next, we define the classification of the drug, and here the sulfone categories, that is Dapsone, phenazine derivative, clofazimine, and some antitubercular drug are also used to treat the leprosy, like the rifampicin and ethionamides. And some antibiotics are also used to treat the leprosy, that is minocycline, ofloxacin, and clarithromycin. Next, we discuss all these drugs one by one. तो पहला जो ड्रग है जो कि एंटी लेप्रोसी का जो मेन ड्रग है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डैप्सोन्स, जो कि DDS भी उसे बोला जाता है और एब्रीविएटेड किया जाता है। यहाँ पे जो DDS है उसका जो फुल फॉर्म है और जो स्टैंड है वो है डाई एमिनो डाइफिलाइल सल्फोन होता है, और ये जो है वो सबसे पुराना ड्रग है, इफेक्टिव ड्रग है और सस्ता ड्रग है, और ये मोस्ट एक्टिव ड्रग भी है सभी एंटीलेप्रोटिक ड्रग में। और इसका जो मेकानिज्म एक्शन है, मीन्स ये ड्रग कैसे काम करता है, और इसका जो मेकानिज्म एक्शन है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लीटली सल्फोनामाइड के साथ जो है वो सेम रहता है। तो मैं जो एंटीबायोटिक्स वाले चैप्टर में और जो पैराइमिनोसैलिसाइलिक एसिड है जो कि एंटी ट्यूबरकुलर का सेकेंड लाइन ड्रग में आता है, उसमें मैं ब्रीफ तरीके से मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सल्फोनामाइड का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम इन शॉर्ट डैप्सोन का जो मैकेनिज्म एक्शन है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट जो कि पावा और टेरिडिन जो कि माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में रहते हैं। पावा मीन्स पारा एमिनो ब्यूटेरिक
एसिड। और ये जो पाबा और टेरिडीन है वो डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेटेस एंजाइम को यूज करके वो क्या फॉर्म करते हैं, डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड। एंड ये जो फर्दर डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड है वो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस नाम का एंजाइम को यूज करके वो डाईहाइड्रोफोलिक फॉर्म करते हैं। और ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नाम का एंजाइम यूज करके वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो फॉर्म करते हैं। और ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म मीन्स जो बैक्टीरियल का जो वाइटल कंपोनेंट्स है, जो कि डीएनए आरएनए सिंथेसिस होता है, प्यूरिन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसमें जो है वो मदद करता है। तो अगर ये जो ड्रग है वो ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फॉर्म करने नहीं देगा तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का जो सेल डिवीज़न है वो नहीं हो पाएगा, उसका जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग है जो कि सल्फोनामाइड है, तो हम एंटीलेप्रोटिक में क्या पढ़ रहे हैं, डैप्सोन्स, और इसका जो मैकेनिज्म है वो सल्फोनामाइड के साथ सेम है। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्सन है डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड, उसके बाद डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, उसके बाद टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, तो ये जो ड्रग है वो यहाँ पे इनिशियल स्टेप में ही यहाँ पे वो बंद कर देगा। तो यहाँ पे फर्दर जो है वो एक्टिव फॉर्म और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो फॉर्म नहीं हैं। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द डैप्सोन, ये जो है अगर हम ओरली लेते हैं तो वो सही तरीके से और कम्प्लीटली ऑब्जर्व हो जाता है, और ये CSF को वो ठीक तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाता, मीन्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो पेनिट्रेट यहाँ पे पुअर दिखाई देता है। एंड यहाँ पे 70% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। और एंड यहाँ पे जो ड्रग है हम लेने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्किन में मसल्स में ये डिपॉजिट होने लगता है, लीवर एंड किडनी, इसकी वजह से ये एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। और हम बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम यूज़ करेंगे इस ड्रग को तो ये टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है। और ये जो है ज़्यादातर लीवर में मेटाबोलाइज होता है बाय द ग्लूकोरोनाइड एंड सल्फेट। ये जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रहता है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिटिलेशन, तो सिंपली यहाँ पे एक लाइन में समझा जाए तो ये लीवर में जो है वो मेटाबोलाइज्ड होता है। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बाइल में एक्सक्रीट हो जाते हैं। बाइल में एक्सक्रीट होगा तो ऑब्वियसली वो स्टूल में एक्सक्रीट होगा, और कुछ जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, और मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। और इसका जो प्लाज्मा टी हाफ है और जो हाफ लाइफ पीरियड है वो वेरिएबल रहता है, मीन कांस्टेंट नहीं रहता। एंड इसका जो एलिमिनेशन है वो थोड़ा लॉन्गर रहता है, और लगभग ये 1 से 2 हफ्ते तक जो है वो बॉडी में डिपॉजिट होके रहता है। नेक्स्ट उसका कुछ साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली जो है वो 100 mg पर डे और 100 mg पर डे और लेस जो डोज है वो टॉलरेट हो जाता है। एंड उससे ज़्यादा अगर हम डोज ले रहे हैं तो माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया रहता है। माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया मीन्स यहाँ पे जो नॉर्मल हेल्दी आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है, उसकी वजह से हमें हमारे बॉडी में जो आरबीसी है वो कम हो जाता है। गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस भी होता है, उसके वजह से नौसिया, एनोरेक्सिया मीन्स यहाँ पे भूख नहीं होता, और जो एब्डोमिनल क्रैम्प है ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हेडेक, पारेस्थेसिया मीन जो पिन चुभने जैसा, निडल सेंसेशन जैसा फील होगा, और कुछ मेंटल सिम्टम्स जैसे कि कंसंट्रेशन में तुम्हें दिक्कत पैदा करेगा, और ड्रग फीवर जैसे भी ये कराता है। और हेपाटाइटिस, एग्रानुलोसाइटोसिस, ये बहुत सारे जो सिम्टम्स है और कॉम्प्लिकेशन जो है वो ये ड्रग लेने के बाद दिखाई देता है। एंड ये डैप्सोन का कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स मतलब किस डिजीज़ कंडीशन में बहुत ज़्यादा सीवियर जो साइड इफेक्ट है वो पैदा करता है। एंड दिस डैप्सोन शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट्स विथ सीवियर एनेमिक कंडीशंस हुज हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन 7 ग्राम। मीन्स ये जिसका जो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो 7 ग्राम पर DL अगर कम रह रहा है तो उस केस में हम नहीं दे सकते। एंड ये लेप्रोसी को ट्रीट करने के अलावा और भी कुछ उसका यूज़ रहता है, जैसे कि हम पायरीमिथामाइन जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है उसके साथ हम यूज करके क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में हम यूज कर सकते हैं। मीन्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए माइल्ड एंटी मलेरियल ड्रग।
तो ये था आज के हमारे जो वीडियो के सेगमेंट में हमने डैप्सोन के बारे में डिस्कस किया। एंटी क्या होता है, क्या सिम्टम्स रहता है और कौन से टाइप के रहते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो आज के वीडियो के पार्ट्स में हम आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे और अगले वाले वीडियो में कुछ अलग ड्रग को लेके आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को समझने के लिए ईजी रह रहा है तो अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग फार्मा डिजिटल।